यहाँ पर जो बोला हमसे करके पंजाब लगाए गोली जाने लगवा पंजाब सरकार ने कितना की पंजाब सरकार ने कितना की पंजाब सरकार ने तुझे देख रहा हूँ कि मैं इस समय खड़ा हूँ नगर निगम भटिंडा के बाहर और शायद तीसरा दिन है और सीवर कर्मी सफाई कर्मियों की हड़ताल जो है बराबर जारी है, जिसमें हमारे भाई बहनें माताएं सभी लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन समस्या ये है, कल मुझे कहा गया था कि ये हड़ताल आज सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या कारण रहे, क्यों खत्म नहीं हुई, एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि अब लोगों के घरों में और शहर में गंदगी और कूड़े का ढेर लगना शुरू हो चुका है और उससे कई तरह की बीमारियां फैलने का भी डर है। यहाँ तक कि अगर हम बात अपने खुद के घर की करें तो हमारे घर पर कूड़े का ढेर जमा हो चुका है और मैंने जो चीफ सेक्रेटरी है संदीप पटारिया जी उनसे भी बात की तो कहते हैं स्ट्राइक चल रही है, कुछ नहीं हो सकता। आखिर इस शहर को गंदगी का ढेर बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये वही भटिंडा है जो पूरे पंजाब में नंबर 1 आता है। लेकिन अगर इस तरीके से रहेगा तो क्या ये हमारा अपना शहर नंबर 1 आएगा? लगता नहीं। आइए हमारे साथ कुछ सफाई कर्मियों के यूनियन के नेता हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो पंजाब शहर में नंबर 1 आता था आज उसको पिछड़े लेवल पर ले जाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और आखिर मामला क्या है। तो कोई आ जाइए, कौन बोलेगा सबसे पहले? आ जाइए सर, तो नाम की है सबसे पहले बताएं और क्या मांगे क्या है, क्यों ये बराबर हड़ताल हर 2-3 महीने में हड़ताल हो जाती है, क्या कारण क्या है? मेरा नाम रिंकू कुमार है जी। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 23/6/2021 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, शहर खराब कराने वाले नगर निगम मैडम की जिम्मेवारी है या गल कर लीए मेयर साहब की। मेयर साहब आश्वासन दे के गए सीट तो उतरन तो पहला ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 597 ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾसन ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੈ ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੇਰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 597 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਰੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। देखो ਤੁਹਾਡੀ बात बिल्कुल सही है कि 597 ਜਿਹੜੇ सफाई कर्मचारी है, जो भी कच्चे मुलाजिम है, उन्होंने मांग पत्र ते पक्के किए जाने
हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 15 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 597 ਬੰਦੇ, ਜੇ ਸੋਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ 597 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੈਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੈਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪ ਭੁਗਤੂਗੀ। ਜੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 597 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 150 ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਟਿੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 70 ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ 100 ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਝਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, 50 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਕੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੋ काम है उन्होंने लेटर बना के सरकार को भेजते। अगर सरकार उस पर सुनवाई नहीं करती तो फिर तो ये तो सरकार का माना जाएगा। देखो ये जो गल कर लीए पहला हाउस की दिक्कत सी, हाउस ने मेयर साहब ने ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ DCFA ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 597 ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੀ ਇਹਨੇ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ करता। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਛੱਪਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ DCFA ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ देखो मैं 2 दिन पहले भी लाइव किया सी, उत्ते भी यही गल सी कि DCFA तिरखा एक हमारी बहन थी उन्होंने भी कहा था कि DCFA तिरखा सांप की कुंडली बन के यहाँ पे बैठा है। बाल्मीक समाज पे या जो सफाई कर्मचारी है, टिप्पर कर्मचारी है या सीवरमैन है, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलते और बहुत सारी बातें सी थी। लेकिन अब समस्या यही खड़ी है कि आखिर इन मुलाजमों और नगर निगम के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो है बठिंडा के शहरवासी, बठिंडा के आम लोग। आखिर आम लोग टाइम से आपको कूड़े का बिल देते हैं, सीवर का बिल देते हैं, टैक्स भी पे करते हैं, फिर उनको ये परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सरकार से या प्रशासन से यही एक लोगों की अपील है कि भाई आप लोगों की वजह से जो शहरवासियों को परेशानी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी सारी आपकी है। हम आज काम पर जाने के लिए तैयार हैं, बट बात यही है कि हमारी जो 597 मुलाजमों की जो शर्त है उसको मान लिया जाए, उनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाए। हमारे साथ और भी लोग उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं उस मामले को लेके। आप प्रधान जी आ जाओ, आप क्या कहना चाहते हैं उस मामले को? सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि अब आपके धरने के चक्कर में शहरवासियों के घरों से बदबू आने लगी है, शहर बदबू आने लगी है, बीमारी फैलने का डर हो गया है। तो आपका धरना बिल्कुल जायज है, लेकिन शहरवासियों की जो परेशानी है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सीवरेज वर्कर यूनियन का चेयरमैन, नाम मेरा गुरचरण, और मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर को गंदगी भरी है तो ये जो हमारे अफसरशाही नगर निगम में बैठे हैं ये इनकी बदौलत है। क्योंकि हम लोग सब जितने भी साथी मेरे यहाँ बैठे हैं कच्चे पक्के सभी हम मेहनत का आदमी हैं, यहाँ बैठकर हम बहुत दुखी हो रहे हैं। परंतु ये हमारी मजबूरी है कि हमारे कच्चे मुलाजमों के लिए जो ये काम नहीं कर रहे हैं
तुरंत जो काम करना है, इनको डेली वेज करना है या पक्का करना है, वो कर नहीं रहे हैं। उसमें आनाकानी करते। कल भी मैडम से मिले तो अब बीच में आज अधूरी बात करी। साथियों देखो, शहर में मैडम आ गए क्या? शहर में तो गंदगी होएगी जब ये हमारे 15-15, 20-20 साल के जो मुलाजिम लगे हुए हैं, इन लोगों को मैं ये नहीं कहूंगा कि कमिश्नर मैडम जितने भी दफ्तर में उपस्थित हैं अफसर, सभी अफसरों की अनगहली के कारण ये शहर में गंदगी फैल रही है। नहीं तो ये चाहें कि हमें पूरा ठोक के आश्वासन दें, लिखित रूप में दें, तो मैं ये कह रहा हूँ, ठोक मैं चेयरमैन की एक ओहदे से मैं कह रहा हूँ कि आज इस शहर को हम पूरा साफ कर देंगे, शाम तक करिए, मेरा दावा है। परंतु ये हमारे बंदों का काम कर दें, उसको एग्री कर ले। ये 597 की जो हमारी मांग है उसे पूरी कर दें, हम आज इस शहर को साफ करते हैं। तो आपने देखा कि जो चेयरमैन साहब है बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को आज मान लिया जाए, हमें एक रिटर्न में आश्वासन दे दिया जाए कि हम बहुत जल्द आपकी मांगों को पूरी कर देंगे, या आजकल में जितना भी टाइम एक रिटर्न में टाइम दे दिया जाए, तो हम आज ही शहर को साफ कर देंगे और शहर बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि देखिए कि पीछे हमारे जो मुलाजिम है कितने सारे आज सुबह से बैठे हुए। शायद इनमें से बहुत से मुलाजिम ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सुबह चाय नाश्ता पानी भी नहीं पिया होगा, लेकिन वो सिर्फ अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आज सुबह से कारपोरेशन के बाहर आगे फिर बैठ चुके हैं। एक बहन और है हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं, और भी हमारी बहुत बहनों से ही बात करेंगे। क्या कहोगे आप? उस दिन काफी अच्छा बोल रहे थे, आगे नहीं थोड़ा सा क्या कहेंगे आप इस मामले को कि हड़ताल क्यों नहीं खुल रही है, क्या दिक्कत आ रही है? ये हड़ताल जी इस करके नहीं खुल रही है क्योंकि सही नियति से जो हमारे अधिकारी हैं नगर निगम के आश्वासन नहीं दे रहे हैं। आश्वासन मिल जाए, हाँ जी, आश्वासन मैं दिलवा देता हूँ, गारंटी लेता हूँ, हाँ जी, फिर हड़ताल खुल जाओगे। सिर्फ आश्वासन की बात कर रहे हैं, आपने आश्वासन का बोला है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं जी। हमें लिखित रूप में चाहिए। लिखित हाँ, रूप में आप चाहिए हमें। हाँ, लिखित रूप में चाहिए हमें। हाँ, आए वो हमें लिखित रूप में दे, जो भी हमारी मांगे हैं हम हड़ताल चक देंगे। ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे मान के चलो जब तक आपकी हड़ताल अगर नहीं मानी जा सकती है तो शहर में जो लोग परेशान हो रहे हैं, शहरवासी परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कोई समाधान निकाला जा सकता है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? बीच का रास्ता तो जी यही है कि जो भी शहरवासी हैं वो हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, हमारे साथ खड़े, हमारी मांगों के लिए वो भी हमारे साथ लड़े। मोबाइलों के जरिए मैसेज दें ताकि वो हमारी मांगों को जल्द पूरा करें और हम अपने कामों के लिए तैयार होके शहर को साफ करें, अच्छी दुल्हन की तरह तैयार करें। देखो, इनकी मांगे हुई है 597, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं। और पहले रवि जी हमारे साथ में थे, कल भी परसों भी बात हुई थी, तो रवि ने ये कहा था कि जल्द अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सीवर की मोटर भी बंद कर सकते हैं और आगे भी कौन स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन आज हम रवि से बात करते हैं कि रवि जी अगर ये मांगे नहीं मानी जाती आपकी तो शहर के जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? जैसे घरों से कूड़ा डालो, बेशक आप उसको रोड पे फेंक दो, कम से कम आम लोगों को सहानुभूति मिलेगी, वो तो आपके साथ करेंगे। ऐसा कुछ कर सकते हैं आप? ठीक है, आपने शहर साफ नहीं करना है, लेकिन कम से कम आप लोगों के घर से कूड़ा तो उठवा सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सर, मैं रवि कुमार चावरिया, प्रधान सीवरेज वर्कर यूਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੀਚ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੁਖਤੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ जावे। देखो मांग वही है, हम आपसे भी अभी बात करते हैं। मांग वही है, बात यह है कि 597 कर्मचारी जब तक पक्के नहीं होते हैं तब तक इनकी जो हड़ताल है बराबर जारी रहेगी। हाँ, लेकिन प्रधान जी ने यह कहा कि शहरवासियों के सहयोग की जरूरत है, तो कहते हैं शाम को हम एक अपने जो भी मेंबर्स हैं, इनके जो एम्प्लॉई हैं, उनके साथ बैठ के एक मीटिंग करेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है तो हम वो कोशिश करेंगे जिससे कि शहरवासियों को भी परेशानी ना हो। लेकिन कारपोरेशन को वही मेमोरेंडम है, वही चेतावनी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इस शहर को नर्क बना देंगे। एक तरीके से कल से रैली का भी बोल रहे हैं, हो सकता है रैली भी हो, मोर्चा भी बंद हो, भूख हड़ताल भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो राजतंत्र टीवी के माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि इनकी मांगों को माना जाए और जो शहर पंजाब में नंबर 1 आता है उसको नंबर 1 ही बना रहने दी जाए। ऐसा ना हो कि ये कहीं फिसल के काफी पीछे चला जाए और सबसे स्वच्छ रहने वाला शहर सबसे अस्वच्छ शहर बन जाए। प्रधान जी भी कुछ कहना चाहते थे, आपसे बात करें और आ जाओ सर, की कहना चाहोगे? सर जी, मैं अशोक कुमार बिट्टू, थोड़ा सा ऊंचा। मैं अशोक कुमार बिट्टू, सफाई कर्मचारी यूनियन के जनरल सैकटरी। साਡਾ कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, साਡਾ कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, लेकिन 597 ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 597 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, लेकिन फिर भी असी मान साहब जी ने कोई बेनती करते हैं, असी कुछ नहीं मंग रहे। 597 है, जे पक्का नहीं भी कर सकते तो घट्टो घट ये सोच तो करन। ते जिहड़ी दूजी मंग हैगी है पूरे पंजाब दी, एक 2004 दे जिहड़ी पेंशन जिहड़ी बंद कीती हुई है, असी मान सरकार जी नूं बेनती करांगे बठिंडा वल्लों कि पूरे पंजाब दे विच बहुत ज्यादा रोष है। असी मान सरकार जी नूं बेनती करांगे कि जिहड़ी ये पुरानी पेंशन जिहड़ी बंद कीती हुई है, ये पहल दे आधार ते इहनूं बहाल कीती जावे और जिहड़े 597 जिहड़े मुलाजम हैगे आ इहनां वल ध्यान दिता जावे, क्योंकि ये भी तुहाडा परिवार है, ये तुहाडा परिवार है, इहनां वल ध्यान दिता जावे। तो रही गल जिहड़े बकाया साडा पे कमीशन दी जिहड़े अपने किस्तां बकाया ने, असीं मान सरकार नूं बेनती करदे हां कि ये भी तुरंत लागू किया जाए। मैं बार-बार मैं एक रिपीट करदा कि 597 का साडा एक मुद्दा हैगा, मेन प्रॉब्लम साडी ये है कि 597 जिहड़े कच्चे मुलाजम है, असीं मान साहब जी नूं बठिंडा नगर निगम के जिहड़े अपने मानयोग कमिश्नर साहब ने, असीं उन्हां नूं भी बेनती करते हैं कि भी 597 इन्हां दा कोड जिहड़ा वो कढिया जावे। साडी होर कोई मंग नहीं है, मंगां तो बहुत है पर साडी 2 मंगां हैगियां, 597 ये पक्के कीते जाण ते पुरानी जिहड़ी पेंशन है वो बहाल कीती जाए। तो तुझे देखो कि प्रधान जी को आप सुन रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, बात एक ही जगह पे आके रुक जाती है, वो है 597 मुलाजिमों को पक्का किया जाए और उनकी जो पुरानी पेंशन वाली स्कीम है उसको किया जाए। अब देखना ये होगा कि नगर निगम कमिश्नर या प्रशासन इस हड़ताल को लेके, इस ट्रैक को लेके क्या कुछ कहता है, क्या कुछ करेगा, क्या उनका फैसला होगा, या फिर शहर इसी तरह गंदगी के ढेर में
तब्दील होता जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सरकार को और प्रशासन को बहुत जल्द इस पर फैसला लेना होगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, हवा चल रही है और पूरा सड़ने लगा है अब शहर की सड़कों पे। हम थोड़ी देर में आपको वो भी दिखाएंगे शहर किस तरीके से कूड़े का डंप बनता जा रहा है। तो प्रशासन से अपील है कि जल्द इनकी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए और शहर को इस समस्या से निजात दिलाई जाए। आइए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। करके भी मीडिया आ चुकी है, मेरे भरावां नूं मारना मार देना हेलो, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मीडिया जी, मेरे आए थे।